ये है कीवर्ड्स। हम उसके हाथ की कारीगरी हैं जो मसीह यीशु में उन भले कार्यों के लिए सिरजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने प्रारंभ ही से तैयार करके किया कि हम उन्हें करें। He is the one who created the time, but he never lives in time, because the word of God says he stands forever. The time is for you. खुदा ने दुनिया में हर एक इंसान को, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, हर एक को एक चीज बराबर दी है। It's 24 hours. एक अमीर के पास भी 24 hours है, एक गरीब के पास भी 24 hours है। Now the question is how you are using your time. Are you a time manager? One can boast, for we are God's handiwork. We are God's handiwork. So he is the one who creates us for his work. Remember, this is the word. Handiwork कौन होता है? हैंडी वर्कमैन कौन होता है? जो आपको तैयार करता है। किसके लिए तैयार करता है? ताकि आप काम को करें। ठीक है, मैंने इस टेबल को बनाया है। किसके लिए बनाया है? ताकि यह टेबल काम करे। किसके लिए काम करे? कि इस पे सामान रखा जाए, है ना? हैंडी वर्कमैनशिप, वर्क काम करने के लिए खुदा ने हमको बनाया है। ओके, नाउ रीड अगेन। फॉर वी आर गॉड्स हैंडीवर्क क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस। खुदा ने क्या किया? हमें क्रिएट किया है इन क्राइस्ट जीसस। क्रिएट का मतलब क्या होता है? इफ एनीबडी कैन गिव मी द एग्जांपल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएट? बनाना। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेड? बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। देखो, क्रिएट और मेड में डिफरेंस है। In the beginning there was nothing. Okay, let me explain you the difference between the create and word so you will get the picture. Okay, in the beginning there was nothing. You know there is a verse 0 in the Bible. कभी आपने पढ़ी है? There is a verse 0 in the Bible in the book of Genesis. Okay, let me open your Bible, book of Genesis, chapter 1, verse 1. And by faith, you will see that verse now. Okay? Number 1. Who was before the beginning? It was God. I am God now. Let's take example. I am God. Now I create the verse number 1. समझ आई? In the beginning, God created heavens and the earth. So who created the heavens and the earth? Is the God. Create the heaven. It means he was before the beginning of the verse 1. So I'm going to start a work now. In the beginning God created the work, heavens and the earth. See, I'm doing the work. I'm creating now because there was nothing exist. So I'm going to create it. जब आप घर पे खाना बनाते हैं ना, राइस, so what you says कि आज मैंने राइस को क्रिएट किया है, आप ये नहीं ना बोलते. So what you says, we make rice. We cook rice because rice is there now. So you can pick up the rice and cook it. जब आप आटे को गूंदते हैं, what is present is the flour. है ना? आटा आपके सामने पड़ा है. Now you are making chapati. But think now, there was no atta and there was no rice. So there was nothing. And God create everything. तभी बाइबल में लिखा है कोई भी चीज जमीन के ऊपर नई नहीं है. There is nothing new in this world, on this earth. Why? Because God creates everything. है ना? हम कहते हैं देयर इज अ न्यू इन्वेंशन हुई ना, न्यू इन्वेंशंस होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने कार निकाल दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक. सो इट इज नॉट अ न्यू, ही डिडंट क्रिएट एनीथिंग बिकॉज द मटेरियल वाज देयर ऑलरेडी. उसने मटेरियल को फिक्स किया एंड देन ही क्रिएट अ कार. आमेन. अगर वो मटेरियल मूसा को मिला होता तो मूसा ने भी कार क्रिएट कर देनी थी, पर मूसा की नजर नहीं गई वहां तक. इट्स कॉल्ड आइडिया, है ना? तो मूसा ने देखा नहीं, बट द मटेरियल वाज देयर इन द बिगिनिंग. जो सेम चीज जो तैयार हो गई है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर हमारी नजर नहीं जा रही है. अब खुदा ने आदम को टेबल और चेयर तो बना के नहीं दी थी, तो क्या दिया था आदम को? पेड़.
और किसने बनाया पेड़ से टेबल और चेयर? आदम ने बनाया. The God will give you the raw material. It is your idea that you bring the stuff from it. So Bible says, because now the thing in English, Ephesians book of, let's go back to the book of Ephesians chapter 2. It says, God, for we are God's handiwork, created. Now you see the difference. Create, because हम खुदा के बीच में थे, खुदा ने हमें निकाला, and now we are created, we are a being now. Amen? So we are created in Christ Jesus to do what? To do good works. खुदा ने हमें बनाया क्या करने के लिए? बुरे काम करने के लिए? अच्छा नहीं, खुदा ने हमें क्या बनाया? झूठ बोलने के लिए. तो बाइबल में क्यों लिखा तुमने झूठ नहीं बोलना? खुदा ने हमें बनाया क्या करने के लिए? शराब पीने के लिए. क्यों खुदा मना कर रहा है आपको? क्योंकि खुदा ने आपको बनाया नहीं है यह काम करने के लिए. एंड ही इज वार्निंग यू, डोंट डू इट बिकॉज यू आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस. Amen? Because you are the DNA of God. खुदा का जो DNA वो आपके बीच में है. अब next word, which God prepared. खुदा ने आपको workmanship, you are the workmanship. खुदा ने आपको काम करने बने. कब बनाया था खुदा ने आपको काम करने के लिए? कोई मुझे बता सकता है कब बनाया था आपको खुदा ने काम करने के लिए? When God created you to do the work. Today. है ना? आज बनाया. जैसे सिस्टर जी की आज बर्थडे है ना, शी इज 73. हैप्पी बर्थडे. ब्रदर जी का भी हैप्पी बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे आज ब्रदर जी, आपको भी नया साल में. तो खुदा ने कब बनाया आपको? आप कहेंगे 73 इयर्स पहले. अरे नहीं सिस्टर जी, रीड करें बाइबल में. विच गॉड प्रिपेयर्ड इन एडवांस फॉर अस टू डू. खुदा ने जब जमीन आसमान भी नहीं बना तब आपको तैयार किया था अच्छे काम करने के लिए. एंड नाउ यू जस्ट लैंडेड ऑन दिस अर्थ टू डू द वर्क विच गॉड क्रिएटेड बिफोर द हेवंस एंड द अर्थ. आप सिर्फ लैंड किए हैं अर्थ के ऊपर उस काम को पूरा करने के लिए. वो काम कब खुदा ने तैयार किया था? जब आप खुदा के साथ थे. सो वेयर यू केम फ्रॉम नाउ. आप कहां से आए हैं? गुजरात से नहीं हम आए. आमेन. हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम इंडिया से नहीं. हम कहां से आए हैं? स्वर्ग से. तभी खुदा कहता है तू क्यों चिंता करता है इन चीजों की? तू क्या खाएगा, क्या पिएगा? क्योंकि तेरी जो गवर्नमेंट है वो स्वर्ग में बैठी है. योर गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग बिकॉज यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट. एम्बेसडर बताऊं क्या तो कौन होता है? अमेरिका का एम्बेसडर गया इंडिया या पाकिस्तान. अब वो वहां पे जाके क्या करता है एम्बेसडर? बेचारा काम ढूंढेगा. पहले कोई काम ढूंढता, वो कोई काम नहीं ढूंढता, है ना. ही विल नॉट, ही इज नॉट फाइंडिंग एनी वर्क. वो किसी रेज्यूमे डालता है अपना किसी कंपनी में मुझे जॉब मिले? नो. उसको खाने की चिंता होती है. क्यों? बिकॉज ही इज द एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स वेयर? इन इंडिया. एंड हिज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एवरीथिंग. Make sure he will get everything while sitting in India. ठीक है? अगर उसको कोई मारता है, is called international problem. क्योंकि because he is the representation of United States of America. बाइबल कहती है अगर लोग तुम्हें कुछ भी कहें उसका बदला मैं लूंगा. Your government will take care of everything. You don't need to worry about anything. That is the reason God called you the ambassadors of Christ. But we missed it. हम सोचते हैं हम पैदा हो गए जमीन पे, अब हमें मेहनत करनी है. खुदा ने दिमाग में बनाया था कि आपको सुपरवाइजर बनाना है, आपको मैंने वो काम देना है, आपको मैंने वो बनाना है. हम सेटल्ड हो गए क्योंकि हमने सोचा हम पैदा हो गए. हमने ये नहीं सोचा जो अभी हमने पढ़ा कि हम खुदा ने हमें सब कुछ तैयार किया था पहले का ही, पर उसने उस काम को पूरा करने के लिए हमें जमीन पर भेजा ताकि हम उस काम को फिनिश करके कहां जाएं? वापस जहां से आए थे. कहां से आए थे? स्वर्ग से आए थे. तो हमारा घर कहां पे है?
स्वर्ग है। जमीन पे क्यों भेजा गया? ताकि तुम जमीन को स्वर्ग जैसा बनाओ। प्रेयर वो करते हैं ना डेली, आए हमारे बाप तू जो जमीन पर है, यही पढ़ते हैं ना प्रेयर है? आए हमारे, हां, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमें सिखाया गया स्वर्ग को भागो। खुदा कह रहा है, खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप से क्या प्रेयर की थी? कि आए खुदा, आए बाप, तेरे बेटे और बेटियां जमीन पे, तू उनको प्रोटेक्ट करके रख। हम कह रहे हैं हमने भागना है स्वर्ग को, खुदा कह रहा है तू इनको प्रोटेक्ट। किसकी दुआ को सुनेगा? आपकी कि यीशु मसीह की? हमने सिस्टम को उल्ट कर दिया है। आप डेली प्रेयर कर रहे हैं कि जो स्वर्ग है वो जमीन पे बने। तो जमीन पे किसने स्वर्ग को बनाना है? आपने और मैंने। किसके लिए? जो खुदा ने आपको एडवांस में काम दे दिया गया था। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी कैपेबिलिटी आपके अंदर भेजी है। आपने कभी सेल फोन लिया है? हर एक के पास आईफोन है ना। सो आप कहते हैं हमने आईफोन नया परचेज किया। आपने कभी आईफोन नया परचेज ही नहीं किया। मैं प्रूव करता हूं। मैं भी यही सोचता था कि मैंने नया आईफोन परचेज कर लिया। इट इज नॉट अ आईफोन, इट वाज द ओल्ड यूज्ड फोन। कंपनीज आती हैं अपने पूरे पुर्जे बना के वो आईफोन में डालती हैं, ठीक है। नाउ द आईफोन गोज टू द मैन्युफैक्चर डिवीजन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं आईफोन को? सबसे पहले वो क्या करते हैं? उसको टेस्ट करते हैं। सो दे आर टेस्टिंग द आईफोन्स। आईफोन, एक एक आईफोन को टेस्ट किया जाता है। क्यों टेस्ट किया जाता है? कि मेक श्योर वो वर्क करे। मेक श्योर जो उसके अंदर एक ऐप होता है कॉल करने का, उसको भी टेस्ट किया जाता है कि जब आप उस ऐप को क्लिक करें क्या हो? कॉल हो। और उसके साथ कॉल अगर कोई पिकअप ना करे, उसके साथ अगर वो कॉल पिकअप ना करे तो कॉल कहां पे जाएगी? वॉइस मेल में। सो इट्स ऑलरेडी टेस्टेड कि वॉइस मेल वर्क कर रही है। आपने मैसेज भेजना होता है। सो दे टेस्टेड कि मेक श्योर कि आपने जो मैसेज लिखा है वो मैसेज ट्रांसमिट हो जाए। दे मेक श्योर कि कोई भी आप जब ऐप डाउनलोड करें इट वर्क्स। तो आपने कौन सा आईफोन परचेज किया? टेस्टेड आईफोन परचेज किया आपने। एंड उसके बाद आपने मैन्युफैक्चर कंपनी, नाउ दे मेक द आईफोन। सबसे लास्ट में क्या होता है उसके? सबसे लास्ट में जब वो आईफोन पैक करते हैं उसको जब सील्ड करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करता है एप्पल? उसके बाद क्या करता है? स्टैंप लगा देता है। स्टैंप क्यों लगाता है एप्पल? कि वो मेक श्योर करता है कि ये आईफोन चलेगा ही चलेगा, बिकॉज ऑफ हिज नेम सेक। खुदा ने जब आपको जमीन पर भेजा, खुदा ने मेक श्योर किया आप जमीन पे काम करेंगे ही करेंगे। दैट इज द रीजन इन माई नेम यू विल डू द ग्रेट थिंग्स। द खुदा आपको गारंटी दे रहा है दिस प्रोडक्ट विल वर्क। बट हमें अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें आईफोन पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये फोन चल रहेगा या कंपनी अच्छी है, पर हमें अपने बनाने वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि जब उसने मुझे बनाया तो वो मेक श्योर होगा ही होगा। वो क्या कहता है? वाई सो वरीड? वाई यू आर सो वरीड? हु इज टॉकिंग? God, your father, talking to who? To the children. Why you so worried? अब worried क्या करती है? Why God says do not worry? Worry जब हम create करते हैं उससे क्या होता है? It brings depression in your life. Worry से क्या होता है? आपके जो cells होते हैं बॉडी में वो change करना शुरू कर देते हैं. What they do after that? They create problems in your body. And you got depressed after that. And you go to the doctor now. Doctor will give you what? The drugs, medicine. Now you are on the medicine already. Okay? Why they give you the medicine? To keep your calm, brain calm. और आपको मेडिसिन खाते ही, ड्रग्स खाते ही क्या हो जाती है? नींद आ जाती है और आप सो जाते हैं, नाउ फील गुड। फिर आप जब उठते हैं साइकिल वही चलता है। Am I right? Nurses are here. Am I right? Am I right?
ड्रग वर्ड, जैसे मैंने लास्ट टाइम प्रीच किया था, द वर्ड ड्रग केम फ्रॉम विच क्राफ्ट. जो फार्माकिया वर्ड है, फार्माकिया से वर्ड आया ड्रग. फार्माकिया का मतलब होता है विच क्राफ्ट. दैट्स व्हाट द फार्मेसी केम फ्रॉम. सो इट्स ऑल demonic. The only way is prayer.